Do the next step. Mm-hmm. No need of that next step. So it is saying click on the next step of the API documentation. Okay, Java installed successfully. Now close it. Just go to your open your command prompt, CMD, and just type Java hyphen version, and you will see this one, Java 21, and today's date. Is it today's? No, it's not today's date. Got it? Yeah, I don't know. My system kind of slow because I'm in the back side of the room and my Wi-Fi router is in the other side. So Oh, that's why like, maybe I am not able to install no it worries. quickly. But once it get installed, you should get it confirmed like this one, Java hyphen version. It will show like this one. Okay, the version, and Okay. then we can get along with our Jenkins. Click on Jenkins. Download. Click on download, and then you will get the option of Windows. Click on it over here. Where is the link? See, download already started. If not, then click on this link. It will get Mm. installed in your system. And then just do next, and it will be installed. Once it will be installed, you just check and do the local host 8080 and press enter. So you will get not this interface. So this is the port number for that? Yeah, they always remember port number for Jenkins is 8080. Okay. Okay. Hmm. And then I already built it, so this is done. When you will be doing the installation, always send me the screenshot if you face any problem. Okay. Okay. So we are aware with this interface, right? Uh, How to no. create? No. Okay. So this is our basic Jenkins pipelines look like. Okay. Whatever the pipeline you will build, it will show over here. Apart from that, you will get the setting option. There's more action and your profile. If you need any other kind of a theme, just click on it. You will get it. If you want to sign up, just click on sign up. A lot of other security appearance. So these are not in use right now. Okay. The very important one is the setting one. It is asking build on the agent node. You want to set up a node or set up an agent. What is the meaning of agent over here is basically whenever you run any job is basically building something. And building what? Your EXE, your DLL, Yeah. all those things. Mm. Okay. So when you will build those one, where that will get stored. So in agent, you will store it. Agent is basically a machine or a server where you store all those things. Okay. Or you Okay. want to store in cloud. So So your repository comes there, right? not the repository. You are storing now, so it will be stored in the machine. Okay. Okay. Like You it's a can, virtual machine. yeah, either be virtual or physical, anything. Even cloud also provide you the support of storing Mm. your DLLs, binaries, artifacts. Okay. So if you want Okay. to click on the setup, then give it a node. You want to make it a permanent agent. Basically, every time when the build will run, it will run on this agent, the permanent one. Right now, I'm not going to do it. Okay.
Currently, it has taken my default window, which where I'm running. Okay, so I'll go back to my Jenkins or the setting part. Plugins, very important one. Before plugins, let's see the systems. तो ये सिस्टम और प्लगइंग में क्या करना चाहिए? I'll tell you. These are the settings that provide you the information about Jenkins. Now, first information is Jenkins का होम डायरेक्टरी कहाँ है? हमेशा यहाँ रहेगा. इसका मतलब क्या तो हुआ कि जब भी जेंकिंस में आप कुछ रन करोगे वो इस हम्म लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा. कंफर्म करना तो हम लोग कर सकते हैं. जेंकिंस प्रोग्राम डाटा, यहाँ गया मैं जेंकिंस में, सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, देन गो टू जेंकिंस फोल्डर एंड देन डॉट जेंकिंस. यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों ने जो जो बनाया था सब यहाँ अवेलेबल रहेगा हम्म इनसाइड वर्क स्पेस में. सी आई सी डी, अच्छा. जॉब 1, जॉब 2 जो भी हम लोग बनाएंगे वो सब यहाँ सेव हो हम्म जाएगा. ओके, तो अगर आप ई एक्सी बनाओगे तो यहाँ देखो, यहाँ ई एक्सी आपका आ जाएगा. ओके. EXE मैंने पाइथन का कोड डाला और उसने EXE बना के मुझे दे दिया. हम्म Okay, we'll do it in this project. We will do it where we will write a Python code and we will try to convert in EXE using Jenkins. Okay, हम्म then system message अगर आप कुछ डालना चाहते हो डाल सकते हो. कंप्यूटर रिटेंशन चेक इंटरवल, हर 60 मिनट में ये चेक करते रहेगा आपके कंप्यूटर को, हर 60 सेकेंड में. कि कोई न्यू चेंजेस आया है क्या, कुछ एनीथिंग, एनी चेंज विल बी डन, get refresh in every 60 seconds. You can modify this one as well. Okay. By default 60 By second default change. 60. Yeah. Then quit period. Quit period when the option is non-zero. See, quit period is basically 5, which means in 5 seconds your build will be trigger. अगर 5 सेकेंड में build trigger नहीं हुआ then it will quit. Okay. Okay. So when this option is non-zero, newly triggered build of this project will be added to the queue. तो जब तक अगर 5 सेकंड में अगर बिल्ड नहीं हुआ तो उसके अंदर में अगर आपने एक और बिल्ड कर दिया तो वो क्यू में ऐड हो जाएगा. ओके. हम्म जेंकिंस विल वेट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन सेकेंड एंड दैट टाइम इज 5 सेकेंड. 5 सेकेंड तक जेंकिंस वेट करेगा. Okay, for example, if your build takes long time to execute, you may want to prevent the multiple source control. Okay, whatever I said, just written over here. Understood? Yes. देन SCM चेकआउट. अभी SCM बेसिकली सोर्स कोड मैनेजमेंट होता है, तो सोर्स कोड मैनेजमेंट में हम गिट के साथ कनेक्ट करेंगे. तो अभी कुछ नहीं कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पे 0 काउंट है. नो कनेक्शन इज देयर. 1 2 3 4 अकाउंट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उस टाइप से ये शो करेगा. हम्म Jenkins URL, see our URL is matching this one, right? yes. अगर यही हम लोग AWS से करते तो यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं आता, AWS का पब्लिक IP एड्रेस आ जाता. हम्म ओके. एंड access key management, these are the things important but not so right now as per our course. So if इनका जरूरत अगर कहीं आएगा तो we will get in touch with that one. Okay, let's go back to manage Jenkins. So this is system configuration. Basically कुछ भी changes अगर system से related, Jenkins से related आपको करना है, then come to this section. हम्म Then comes your plugin. Very important. प्लगइन में क्या होता है कि हम्म whatever outside tool you want to add, फॉर एग्जाम्पल पाइथन बिल्ड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पाई इंस्टॉलर चाहिए, तो वो एक प्लगइन हो गया. हम्म ठीक है. इवन पाइथन इटसेल्फ इज अ हम्म प्लगइन. अगर आपके जेंकिंस में पाइथन नहीं है तो वो रन ही नहीं होगा. तो आप पाइथन लिख करके वो सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं. यहाँ से पाइथन में इंस्टॉल कर सकता हूँ. ओके, क्लिक एंड इंस्टॉल. तो दिस प्लगइन इज डेप्रिकेटेड, मतलब ये बहुत पुराना हो चुका है, 10 साल हम्म पहले का प्लगइन से. अच्छा. ओके. ओके. एंड हेल्थ इज बेसिकली हाउ मच गुड इट इज, तो ये भी शो करता है.
recent plugin में if you see the Jenkins Outlook, it looks bit weird. I mean, so outdated, doesn't it? काफी पुराना लगता है ना? Yeah. So उसके लिए इन्होंने क्या किया है, but people are so much adapted with this UI that they don't want to change the UI. So उन्होंने क्या किया कि जिन्हें नया UI चाहिए उनके लिए एक बना दिया न्यू वन, उसका नाम है ब्लू ओशन। Mm. सो अगर आप इसे इंस्टॉल करोगे, ये वाले को ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, इनेबल्ड भी है, तो लेट मी शो Mm. यू दैट। तो इंस्टॉल करोगे और अगर मैं किसी इसमें गया तो यहाँ देखो, यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा ब्लू ओशन, ओपन ब्लू ओशन। अभी मैं इसे क्लिक Yes. करूंगा तो जेंकिंस पूरा ही बदल Mm. जाएगा। देखो अब ऐसा शो कर रहा है जेंकिंस, Oh, सेम okay. वही है, एवरीथिंग इज सेम, Mm. बट लुक डिफरेंट हो गया, राइट? Yeah, उसका जो हम्म। फीचर्स डिफरेंट हो गए। या यूआई पार्ट वगैरह सब डिफरेंट हो गया। ओके, क्लिक ऑन जेंकिंस। देखो इतने सारे जॉब जो हम लोगों ने बनाए थे सब यहाँ दिख रहे हैं। इस जॉब के अंदर कितने बार ये चला है, कितने बार फेल हुआ है। आई कैन रन इट Uh, अगेन। सो प्रीवियसली रनिंग डिफरेंट, यहाँ क्लिक करके मैं इसका देख सकता हूँ अभी ये किस स्टेज पे, चेकआउट स्टेज पे। अब ये क्या कर रहा है, इंस्टॉल डिपेंडेंसी कर रहा है। फिर ये क्या किया, बिल्ड, सी हाउ गुड इट इज। mm. और अभी इसने EXE बना दिया। तो मैं Yes. इससे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ, रीस्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, ब्रांच का नेम हमने कुछ डाला नहीं था, यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा है। चेंजेस कुछ गए हैं, नो चेंजेस देयर, कुछ टेस्ट वगैरह है, आर्टिफैक्ट। तो क्या बना आर्टिफैक्ट में, EXE बन गया, राइट? EXE ये खुद बनाएगा ना, right? So we don't have to worry about it. आपको कोड लिखना पड़ेगा, हम्म। बनाएगा तो यही, बट आपको सारा कोड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिससे EXE बनता है। वो तो ठीक है, लाइक प्लगइन तो इसमें करना है जेंकिन में ना। हाँ, प्लगइन्स तो जेंकिन्स में चाहिए। ओके। Once you are done, happy with this UI, I can come out. Okay. तो जब भी आपको प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करना होगा आप यहाँ कर लेना। देन कम्स योर क्लाउड। क्लाउड से अगर कनेक्ट करना है जेंकिन्स को तो वो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट मोस्ट पीपल ऐसा नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली जा करके क्लाउड से इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली किया था। देन टूल्स, कॉन्फ़िगर टूल, लोकेशन, ऑटोमेटिक इंस्टॉलर। सो गिट के साथ अगर गिट इंस्टॉलेशन करना है तो यहाँ पे डाल सकते हो गिट से रिलेटेड कि गिट का तुम्हारा पाथ क्या है गिट इंस्टॉल करने के लिए। ग्रेडल इंस्टॉलेशन, कोई भी टूल आपको इंस्टॉल करना है उसके लिए यहाँ पर दीज आर बिल्ड टूल्स। ओके, मेवन जो था जावा प्रोजेक्ट है अगर आपका, तो उसके लिए आपको मेवन चाहिए, तो आप मेवन इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, ग्रेडल इंस्टॉल कर सकते हो, एंट इंस्टॉल कर सकते हो। इवन जावा ऑल्सो यू कैन तो इंस्टॉल इट। इसमें जितने हम्म। जितने भी कोडिंग्स के बिल्ड अप्स है वो सारे इसमें आ जाते हैं, राइट? बिल्कुल। ओके। Then comes our node part. Node is basically where you will create your machines, agents on which your build will run. If I want my build to be run on 10 machines, तो क्या करेंगे, यहाँ जाके 10 नोड्स ऐड करने होंगे आपको, बेसिकली 10 मशीन्स ऐड करने होंगे। ये क्लिक करोगे, नोड का नाम दोगे, बेसिकली मशीन का नाम, जो भी मशीन आपको इंस्टॉल करना है, जो भी मशीन में आपको रन करना है, ठीक है। क्लिक ऑन क्रिएट। फिर इससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन आपको देना है, वो मशीन कहाँ पर है, यूजेस, लेबल, इट्स वेरी हेक्टिक। ओके, तो नीड नॉट अब टू वरी एक अबाउट इट। मशीन कनेक्ट कर लो। सो वी शुड नो वरी अबाउट नाउ। नो, नॉट मच। ओके, if I'll get another free machine, I'll show you connecting with it. Okay,
So far, the machines I'm having, I can't do that with one. But if I'll create a new machine, I'll show you. Okay, how to connect, how to create the node in this one. तो वो मशीन हम लोग VMware से करते हैं या? हाँ, in our organization, we do it through VMware. Okay, so this takes little bit of time. So we'll do it. एक में करके दिखा दूंगा. हम्म, Okay. Then appearance, how Jenkins you want to look, कैसा दिखना चाहिए. देन अगर जेंकिंस किसी के साथ यूज कर रहे हो तो क्रेडेंश यहाँ पर सिक्योरिटी लपाट आ जाता है. सॉरी. ओके, ऑल दोस क्रेडेंशियल्स, सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स. सो बेसिकली अगर आपको जेंकिंस को किसी और के टूल्स के साथ एक्सेस करना है तो वहाँ पर ये सिक्योरिटी वगैरह चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग. प्लस आपको किसे एक्सेस देना है, किसे नहीं देना है. सो दीज थिंग्स आर बिट व्हेन यू विल बी यूजिंग जेंकिंस विद अदर टूल्स जो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे. डॉकर, क्यूबरनेटीज उनके साथ कनेक्ट करना रहेगा. तो how we will configure this one, authentication one. तो हम लोग वर्चुअल मशीन बना के फिर करेंगे, राइट? Right. Just अच्छा. give me 1 second. Let me drink a water. Hmm. Any questions? ना. पे स्टेटस इंफॉर्मेशन, स्टेटस लॉजिस्टिक जेंकिंस के बारे में, कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो जेंकिंस का ये पता करना. हालांकि जेंकिंस का वर्जन पता करना इट्स नॉट डिफिकल्ट. यहाँ जेंकिंस क्लिक करेंगे, नीचे अगर स्पार्कल हो यहाँ पर उसे वर्जन दिख जाएगा. ओके. REST API. Any idea about APIs? APIs? नो. नो वरीज. फ्यूचर में हम लोग इसका यूज़ करेंगे. एपीआई बेसिकली अगर मुझे अपने जेंकिंस का एक्सेस, कुछ पार्ट का एक्सेस किसी और को देना है तो उसको मैं एक एपीआई बनाऊंगा जिसमें ये सारे लिमिटेड यूजर्स रहेंगे और मैं किसी को दे दूंगा. फॉर एग्जांपल यू, आई एम गिविंग टू यू एक्सेस ऑफ माय जेंकिंस, कि आप कुछ फीचर्स में जेंकिन के यूज़ कर सकते हो. सो आई विल क्रिएट अ एपीआई एंड गिव इट टू यू. सेम विद अ वेदर एपीआई. वेदर एपीआई की फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया, ये क्या बोलते हैं, एक ऐप बनाया जो आपका वेदर दिखाता है. तो मेरे ऐप को कैसे पता चलेगा कि अभी बाहर या लॉस एंजलिस या फिर अमेरिका का टेम्परेचर क्या है. तो वो किसी और ने बनाया है और उसने हमें बोला है कि आप मेरा एपीआई की ले लो और अपने ऐप में डाल दो. यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ माई फाइंडिंग. ओके, मैं ढूंढूंगा कहाँ टेम्परेचर कितना है और वो एपीआई की आप अपने वेबसाइट में या फिर ऐप में डाल करके वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो. बदले में मुझे कुछ पैसे दे देना. ओके. So when you access any API key of any person or any app, in return of that, you will pay a small amount and they will give you the access of their application through which you can show the weather to other people. Okay. ये तो बोल रहा है भाई कॉल कर लो और पता कर लो कितने प्राइस है. हिस्टोरिक वेदर एपीआई like this. Got it? यस.
तो ये सारे सेटिंग्स है, यहाँ बिल्ड क्यू दिखाते हैं बेसिकली कितने बिल्ड हो रहे हैं। तो वी विल कम बिल्ड हिस्ट्री में आप देख सकते हो कितने बिल्ड हुए हैं अभी तक, इतने सारे बिल्ड टेक प्लेस किए। बट जनरली हम लोग ऐसे नहीं देखते बिल्ड हिस्ट्री, वी गो टू वट एवर द सिलेक्टेड पाइपलाइंस पे जाएंगे जैसे इसका, और फिर इसकी अगर मुझे देखनी है कि ये कितने बार रन हुआ तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये 2 बार ही रन हुआ ये पाइपलाइन। अगर मुझे लॉग्स देखने तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, मुझे लॉग्स पता चल जाएंगे, प्लस ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस वन यू कैन डू मॉडिफिकेशन। हर चीज़ यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। इससे अगर मुझे न्यू में देखना है, न्यू यूआई में, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। पाइपलाइन ओवरव्यू से यहाँ से स्टार्ट हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया एंड देन एंड, दीज आर द आउटपुट्स। क्या आउटपुट क्या था आपके पाइपलाइन का। डिलीट करना है, ये बिल डिलीट भी कर सकते हैं। कंसोल आउटपुट वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली द लॉग्स शो करता है। रिप्ले क्या है, रिप्ले बेसिकली शोज द कौन सा पाइपलाइन क्या स्टेजेस आपने लिखा था। So this is it. Timings, basically when did you run this pipeline? कितने मिनट तक के लिए चला, कहाँ ब्लॉक हुआ, ओके, कितने देर क्यू में रहा। Mhm. स्टेटस पाइपलाइन पास So हुआ या as a फेल। DevOps, हम्म। ये Jenkins DevOps engineer like real world job में जब आप job पे जाते हो तो how so you want to use the Jenkins like every day or it's not needed or तो सी क्या हम लोग जेंकिन्स लाइक, हम्म जेंकिन के टाइप के सिर्फ जेंकिन ही नहीं, काफ़ी सारे हैं। ओके, लाइक एज्योर डेवऑप्स, आवर कंपनी यूजेस एज्योर डेवऑप्स। हम्म सो वहाँ पर हम्म सारे बिल्ड्स वगैरह होते हैं। सो एवरी डे यू हैव टू सी द बिल्ड्स। पहला काम आपका आना होगा और बिल्ड देखना होगा कि बिल्ड कैसा चल रहा है, पास हो रहा है, फेल हो रहा है। इफ आई शो यू द एज्योर डेवऑप्स, तो यहाँ जाऊँगा, मेरा पहला काम क्या होगा, पाइपलाइन को देखना। तो यहाँ पे आया, मैंने देखा 4 फेल पाइपलाइन है, फिर मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा क्या इशू है क्या नहीं। ओके, in the same way if your company uses Jenkins on behalf of this Azure DevOps, you will be using, you will be first work come and see the pipeline। सारे पाइपलाइन पास हुए हैं, कोई फेल हुआ है, कोई फेल हुआ है तो उसमें जाना है और उसको देखना है फेल क्यों हुआ है, लॉग्स चेक करने हैं, व्हाट इज द इशू। तो ओके, उसको इश्यू में फिर आपने कोडिंग लिखना ही है जस्ट यू हैव टू नो, रीस्टार्ट you मे have to बी understand the error first, कि error is it because of you or is it because of the developer। Okay, by looking at it। So when you will install Jenkins, you will not find all these things। Okay, initially ये सब सारा चीज empty रहेगा आपके लिए। So what you will do, just come and create a new item। Okay, there are a lot of ways, but most famous is the freestyle। Click on this one, give it a name. That's a person get job। Click on OK. Give it any description regarding the pipeline. If this pipeline is a GitHub, click on GitHub project and provide the URL of your GitHub। Okay. We'll come to all these things later on. And then here you have to click on Git. Again, provide the repository. Then which branch are you going to build? Master, main, whatever the branch. And then after, you need to click on this one, GitHub hook trigger for Git SCM polling। So इससे क्या होगा, आप GitHub से कनेक्ट हो जाओगे।
ओके, एंड देन बिल्ड periodically. मतलब अगर आप ये जैसे ये जो पाइपलाइन रन हुई है ना, इसे मैंने नहीं रन किया है, एक टाइमिंग हम लोगों ने सेट किया है, उस पर ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है. So in Azure DevOps, it's a bit easier to set the time, but in GitHub, sorry, in Jenkins, it's a bit tricky to set the pipeline, set the timing. So I'll show you how to do that one. None पे अभी मैं रखता हूँ, GitHub प्रोजेक्ट नहीं है. Build periodically. अब यहाँ पर आपको इस periodically को हम लोग बोलते हैं cron job. So let's get first understand what is this cron job. Jenkins. So here it is. द बिल्ड ट्रिगर बेसिकली मुझे क्या करना है कि हर सैटरडे को मैं चाहता हूँ ये बिल्ड रन हो 11:45 PM पे. ओके, सो 11:45, so the very first section is showing the minutes. ओके, फर्स्ट स्टार 5 स्टार्स होते हैं. ओके, 1 2 3 4 5. द फर्स्ट वन इज शोइंग द मिनट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 0 to 59. वी हैव टोटल 60 मिनट, सो 0 to 59. अब ये किस टाइम पे रन होना चाहिए, 45 मिनट पे. सो विल राइट द 45. Then here it is 11 PM. 11 PM, if you convert into 24 hours, it comes out to be 23, right? Say confidently. Yes. So 23 आ गया. And then day of month. Basically month के किस day में आपको ये करना है, तो we have 0 to 31, 1 to 31. So if you want to run on a specific day of any month, you just put that date number. But generally we don't do that one. We usually build every day or every on a particular day as well. Then which month you want to build? Is it Monday, Tuesday? Sorry, not Monday. January, February, March, April. So based on the number of that month, you put that number. If it is 3, then it will be March. And then week of the day. On which day you want to build. So 0 is considered as Sunday, 6 is considered as Saturday. So I said build every Saturday at 11:45 PM. So Saturday comes at 6, right? So in this way, we converted this Saturday 11:45 PM to our cron job. 11:23 * 6. Understood how to read this one? If you क्रॉन are जॉब confident, क्या होता है वैसे? क्रॉन जॉब का मतलब क्या cron होता है? job का मतलब होता है एक शेड्यूल जॉब, ठीक है, जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे, बिकॉज कभी कभी क्या होता है बिल्ड आपको रात में ट्रिगर करनी होती है. अब रात में आप सो करके उठोगे, अब बिल्ड तो नहीं करोगे. और मान लो 100 पाइपलाइन है, मैं चाहता हूँ 100 पाइपलाइन हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पे बिल्ड हो. आई डोंट वांट एनी मैनुअल इंटरवेंशन, कि कोई जाए और क्लिक करे बटन को ताकि वो बिल्ड हो. जेंकिंस में कहते हैं ना बिल्ड नाउ. We don't want that one. We want every day at imagine 3:45 PM. Okay, I want this to be built. So अगर मुझे हर दिन बिल्ड करना होगा, so how will I write? First मुझे इसे कन्वर्ट करो. Every Wednesday 3:30 PM को मुझे ट्रिगर करना है, तो उसका क्रॉन जॉब कैसे होगा? कैन यू टेल मी द फर्स्ट स्टार में क्या लिखेंगे हम लोग? व्हाट फर्स्ट स्टार डिनोट्स? फर्स्ट स्टार में मिनट्स, राइट?
Yes, minutes, then तो hours, and या then day. सो मिनट, वेट मिनट कितना यहाँ बोला गया, 30 मिनट, 30 मिनट पे, तो हम लोग यहाँ टाइप कर देंगे 30। फिर कितने आवर्स में, 3 PM। 3 PM को 24 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 15, 30. 15, या सो आई विल राइट 15। देन ये मंथ हो गया और ये वीक का हो गया, तो मुझे ये नहीं चाहिए। वेडनेसडे, तो क्या नंबर आएगा? इफ 0 इज Uh, संडे, सो वेडनेसडे विल बी 3. 3। डन, वी डन विद आवर प्रोंजा। अंडरस्टूड ना? Yeah. इसी में एक छोटा सा एक और चीज़ है कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड इन एवरी 5 मिनट, हर 5 मिनट में रन होना चाहिए। सो फॉर दैट जस्ट डू स्टार divided by 5. So what it will happen, every 5 minute it will build. Okay, जनरली नहीं कहते हम लोग हर 5 मिनट तो बिल्ड नहीं ट्रिगर करते हैं। Okay. So let's do this in practical now. So अभी टाइमिंग क्या हो रहा है, 7:42 PM here. I want to run it on 7:45 PM. 45 लिखेंगे पहले तो, and then 7 PM. How much it will be? Say in 24 hours 7 PM would be 45. no 7 PM. 45 we have done. It's 15. Yeah, it's 7 p.m. gonna be 18. I mean 19. 19, yeah, and then star, and today is what day? Is Saturday, which is gonna be first or 0. Like, Saturday is 6, Sunday is 0. Okay, 0 to 6. And then for testing, we'll just add a build step. Execute Windows batch, let's do this, and echo you got it fully. Okay, I'll just save this one. इसमें तो सारा वो पाइथन का कोड फॉर्मेट आ रहा है. Every format you can do it. I'll show you that one, but we'll wait till 7:45. 7:44 हो गया, 1 मिनट और वेट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ बिल्ड रन हो जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ देखो मैं बटन नहीं दबाऊंगा बिल्ड नाउ का, इट शुड ऑटोमेटिकली ट्रिगर, पास फेल कुछ भी हो बट शुड बी ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड। तो बिल्ड नाउ का एडवांटेज क्या होता है? बिल्ड नाउ का अगर मुझे अभी रन चाहिए तो मैं क्रॉन जॉब नहीं सेट करूँगा ना, मैं डायरेक्ट बिल्ड नाउ कर दूंगा। मुझे अभी देखना है कि अभी आउटकम क्या आता है। सो एक हो गया कि शेड्यूल पे रख दो, देखो शेड्यूल पे, अगर शेड्यूल पे रख दिए देन दैट्स फाइन, वो हर रात को 12-1 बजे जा करके वो अपना बिल्ड कर देगा। बट मॉर्निंग में आए देखे बिल्ड इनकम्प्लीट है या बिल्ड फेल हो गया है, तो मैं उसे ठीक करूंगा बिल्ड को और फिर से रन करूंगा, ना कि मैं वेट करूंगा कि फिर से रात हो और फिर से वो बिल्ड हो। सो आई विल जस्ट बिल्ड इट एट दैट वेरी मोमेंट। नो, एज अ डेवलप इंजीनियर आपको जब आप अपने काम पे एज अ डेवलप्स इंजीनियर काम करते हो हम्म। तो आपको लाइक ये जो पाइपलाइन होता है ये आपका आप लाइक बिल्ड अप करते हो लाइक व्हाट इज लाइक सो अगर मैं अभी बेस्ड ऑन. कल मंडे को जाऊंगा ऑफिस, तो दिस पाइपलाइन ऑटोमेटिकली बिल्ड। ओके, कब बिल्ड हुआ, 12-13 ओके. घंटे पहले। And I'll see couple of them are failed. This one failed. I'll look into the issue. हम्म. I'll see the issue. It is because of the machine. Disk space is not enough. Disk space भर गया तो मैं disk को हल्का करूँगा and then I'll rerun the job.
बेसिकली मैंने एक्सप्लिसिटली से रन कर दिया। ओके, अब ये थोड़ा टाइम लेगा, अपने आप ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा रन करना। सी, इट स्टार्टेड नाउ। सो यहाँ क्या मैंने किया, एक्सप्लिसिटली मैंने कंट्रोल किया। सेम थिंग यू हैव टू डू विद द Jenkins. This one happened automatically at 7:45, which we set. Yeah. बट मुझे अगर अभी जा Mm. करके देखना है इसे, मुझे फिर से एक बार बिल्ड करना है, मैं बस क्लिक करूँगा वहाँ पे। ओके, गॉट इट। Yes. क्रॉन जॉब क्लियर हो गया। Yes. 7:46 का PM. हाँ, ये तो हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली किया, और ये वाला तो ऑटोमेटिकली हुआ था। Yes. That's the benefit of using the cron job and Jenkins build. So नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फुल फ्लेजेड पाइथन का एप्लीकेशन लेंगे और उसे पूरा बिल्ड करेंगे, उससे EXE बनाएंगे गिटहब का कनेक्शन करके। ओके, Okay. so for now practice everything whatever we have discussed, build a small build, make cron job available right over there. Okay. Okay, Okay. तो अमेज़न में वो AWS का तो अकाउंट आप भी लाइक नेक्स्ट क्लास में अभी पढ़ेंगे, राइट? हाँ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले तो ये से ख़त्म कर लेंगे विंडोज़ पे ही जेंकिंस को, फिर हम लोग लिनक्स और पाइथन करेंगे, एंड देन लिनक्स और नेटवर्किंग, एंड देन वी विल डू द AWS। तो वहाँ पर आप अकाउंट क्रिएशन वगैरह सब मैं स्टार्टिंग से बता दूँ। Okay. Okay, Okay, makes sense. All right.